Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. Okay students, so today we are going to talk about the mechanism of replication. In last video we talked about the enzymes required for replication. Today we are talking about the mechanism of the replication. Okay, as I said in last video that the replication is what? It is the process of making the exact carbon copy of the DNA, and it takes place in the cytoplasm in the prokaryotic cell, and in eukaryotic cell it takes place in the nucleus during the S phase of interphase. So let's start with the process. As we know, the DNA is a double helical structure like this. Okay, this is a double helical structure. This is the 3' 5 DNA, and the another complementary DNA is the 5' 3. Okay, this is the 5' 3. In eukaryote, the DNA we know is the linear and helical, but in prokaryote if we talk about the DNA, then DNA is circular and double helical, like this is a one DNA and the another DNA. Okay, this a double stranded DNA. In the prokaryote, this is the prokaryote. In prokaryotic cell the DNA is circular and double stranded, okay, helical also. So since we are talking about the replication in prokaryote, so to understand this mechanism easily, I am drawing the DNA in this way. Okay, the DNA, this is the DNA, double stranded DNA, I will show in this way. Now, as I said that the DNA is a helical structure. So for the replication, what is the important thing? That it has to be unwind, okay, so that the replication can start. Then question comes, from where the replication will begin? Then we say in the DNA the replication begins from ORI site. Replication begin from ORI site. ORI site. Now question comes, what is this ORI site? Full form of ORI: origin of replication, initiation site. Now question comes, in DNA how many ORI sites are there? How many ORI sites? Then in prokaryotic cell, in prokaryotic DNA, remember always a one ORI site will be there, only one in number. And in eukaryotic DNA, the number of ORI sites are more than one. For example, if we talk about fruit fly, Drosophila melanogaster, in fruit fly the number of ORI site is 3500.
Now question comes, why ORI site is required? Why ORI site is required for the replication? When we say, because ORI sites are the sites which have certain specific autonomic replication sequences. Means here the certain specialized sequences are there which have the capacity to replicate automatically. Okay, autonomic replication sequences. In short, we call them ARS, autonomic replication sequence. So wherever in the DNA autonomic replication sequence will be present, that will form a ORI site, and from there only the replication can begin. And these ARS sites in the prokaryotic DNA is 1 in number. So ORI sites are 1 in prokaryotic DNA, but this type of the autonomic replication sequences are more in the eukaryotic cell, and that is why they are the we say that ORI sites are more than 1. Okay. Now question comes, what base pairs are present in ORS sites? Then we say the now we know DNA is a double helical structure, as in the beginning we talked. So to start the replication, first of all this DNA has to be unwind. The unwinding of the DNA should be there, and we all studied in last video that unwinding of the double stranded DNA is done by an enzyme named as helicase enzyme. This is the helicase enzyme. Okay, this helicase enzyme is responsible for the unwinding of this double stranded DNA. When this DNA is unwind by the helicase enzyme, we all know because of the tension which present in it, it can recoiled again, it can form the double stranded DNA. So to release the tension, another enzyme also work, and that is what? Topoisomerase enzyme. So that topoisomerase is working to release the tension. Okay, release the tension of winding, and this helicase is for unwinding of the double stranded DNA, unwinding. And to provide the stability to the DNA, on the same time here what happened, the single strand stabilizing protein SSSP, single strand stabilizing proteins also binds, which provide the stability from the digestive enzyme nucleases, and in that way only the replication can begin. Now when this helicase enzyme unwind the DNA, then what you can see, the DNA forms a Y-shaped fork. Here this Y-shaped fork is formed, and this Y-shaped fork is called as replication fork. What is it? It is called replication fork. Replication fork is the fork from where the replication will take place. Now remember, replication is a bidirectional process. It is a bidirectional process. It is a bidirectional process. Remember, it is a bidirectional process. Very rarely in some organism the unidirectional replication may be there, but mostly the replication is bidirectional. Now in last video we talked about it, that DNA polymerase enzyme, DNA polymerase enzyme is an enzyme
which is responsible for the replication. We talked about it that in eukaryotic cell, 3 type of the DNA polymerase enzymes are present: DNA polymerase enzyme 1, DNA polymerase enzyme 2, and DNA polymerase enzyme 3. And I told you that the DNA polymerase enzyme 3 is the main enzyme which is involved in the replication. Now, remember, this DNA polymerase enzyme read the parental DNA. It's a very important thing. Read the parental DNA always in the direction of 3'5. खास बात है ये. ऑलवेज रिमेंबर, पेरेंटल डीएनए को ये हमेशा 3'5 में रीड करता है. कौन? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3. एंड द न्यू डीएनए विच विल बी फॉर्म्ड, द न्यू डीएनए स्ट्रैंड will form in 5'3 डायरेक्शन. ऑलवेज 5'3. ये भी एक दूसरी इंपॉर्टेंट खास बात. ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखने वाली है. पेरेंटल डीएनए को हमेशा 3'5 में रीड किया जाता है एंड द न्यू डीएनए स्ट्रैंड विच विल बी फॉर्म्ड दैट विल बी इन 5'3 डायरेक्शन. नाउ जब डीएनए अनवाइंड होके ये फॉर्क बना लेगा, दिस इज द फॉर्क, वाई शेप फॉर्क, एंड दिस इज द 3'5 डीएनए and the another is the 5'3 डीएनए. तो अब यहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा बाई डायरेक्शनल. एज आई सेड, बाई डायरेक्शनल. ओके, तो हमेशा मैंने क्या कहा, द न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन द 5'3 डायरेक्शन. माने इस थर्ड वाले प्राइम पे फ्रॉम हेयर अ न्यू स्ट्रैंड विल स्टार्ट 5'3, और यहाँ इस फॉर्क वाली एंडिंग पे यहाँ पर फ्रॉम हेयर the new DNA strand will start forming. Okay, ऐसे होगा. Now the one thing we all should understand, replication जब start होता है तो सबसे पहले कुछ specific initiator proteins will recognize the ORI site, because DNA is quite long. So the specific initiator proteins will come and they will recognize the ORI site, which is a Y shaped fork, or we called it replication fork. Okay, so on it now the replication of the DNA will start, and as I said, the replication of the DNA is the work of DNA polymerase enzyme 3. Okay, so DNA polymerase enzyme 3 will form the new DNA. But here one problem comes now. There is a limitation of DNA polymerase enzyme. What is the limitation? We all should remember it. This is an important question. The limitation of DNA polymerase enzyme is what? This DNA polymerase enzyme can extend or elongate, or I can say elongate a previously present nucleotide chain. But it cannot start forming a new nucleotide chain.
न्यूक्लियोटाइड चेन। याद रखना, खास बात बोली मैंने, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर सकता है, कोई अगर पहले से एक न्यूक्लियोटाइड की चेन प्रेजेंट हो वहां पर, तो उस न्यूक्लियोटाइड की चेन को, ये कोई एक न्यूक्लियोटाइड की चेन प्रेजेंट है भाई यहाँ पर, इस न्यूक्लियोटाइड की चेन को ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लंबा तो कर सकता है, इसके साथ जोड़ के इसको लंबा तो कर सकता है, लेकिन कहीं से नया डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। ये इसकी लिमिटेशन है। ये न्यू डीएनए स्टार्ट नहीं कर सकता, न्यू स्ट्रैंड नहीं बना सकता, ठीक है। ये सिर्फ क्या कर सकता है, इलोंगेट कर सकता है, पहले से प्रेजेंट डीएनए को इलोंगेट कर सकता है, बट कैन नॉट स्टार्ट द न्यू डीएनए, नया डीएनए नहीं बना सकता। तो अब यहाँ से तो नया डीएनए बनाना है, ये डीएनए बनाना है, तो इसका मतलब ये तो कर ही नहीं सकता। यहाँ से भी डीएनए बनाना है, एक पेरेंटल डीएनए पे नया डीएनए बनाना है, तो ये तो कर ही नहीं सकता, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 तो कर ही नहीं सकता। यस, ठीक है। सो नाउ हियर द रोल कम ऑफ प्राइमिंग, आरएनए प्राइमिंग। सो नाउ रोल किसका आया, आरएनए प्राइमिंग का। क्या बोला मैंने कहा भाई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन इलोंगेट अ प्रीवियसली प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड चेन बट इट कैन नॉट फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन। तो भैया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 कह रहा है भाई मेरे को एक न्यूक्लियोटाइड की कोई चेन दे दो, मैं उसको लंबा तो कर दूंगा, नया नहीं शुरू कर सकता भाई, ये मेरी लिमिटेशन है। देन हियर एन एंजाइम which is named as RNA primase, एंजाइम का नाम क्या, RNA primase। ये RNA primase एंजाइम जो है, this RNA primase enzyme, RNA primase is an enzyme which can initiate the formation of new nucleotide chain, formation of new nucleotide chain, न्यूक्लियोटाइड चेन। बस बात ये है कि बस ये न्यूक्लियोटाइड की चेन जो हो सकती है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन हो सकती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, ये इनिशिएट कर सकता है आरएनए प्राइमेज एंजाइम, एक नई न्यूक्लियोटाइड की चेन है ना, आरएनए प्राइमर जो है ये वहाँ ऐड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ये कैपेसिटी के, ये स्टार्ट कर सकता है। सो ड्यूरिंग द आरएनए प्राइमिंग क्या होगा, सबसे पहले इस पेरेंटल डीएनए के थर्ड एंड पे यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमेज यहाँ एक 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक न्यूक्लियोटाइड की चेन, आरएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन, सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर जोड़ दी जाएगी बाय द आरएनए प्राइमेज एंजाइम, जिसका ये एंड क्या है 5 प्राइम और ये वाला एंड क्या हो गया 3 प्राइम। अगर ये यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर की चेन, न्यूक्लियोटाइड की चेन जोड़ दी जाए तो नाउ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको लंबा तो कर सकता है, कैन एक्सटेंड, है ना, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली प्रेजेंट अब न्यूक्लियोटाइड चेन है विच कैन बी एक्सटेंडेड, बट नहीं शुरू नहीं कर पा रहा था। तो आरएनए प्राइमिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी provide a small nucleotide chain of ribonucleotide so that DNA polymerase enzyme 3 can elongate it. Okay, जैसे यहाँ है सिमिलर वे में यहाँ पर भी अगेन व्हाट RNA primer RNA primase enzyme will work and it will form a small nucleotide chain 5 prime 3 and in this way, and here also the elongation can take place by the DNA polymerase enzyme. So what is priming? अगर हमसे कहीं कोई कहे what is the priming, तो हम कहेंगे priming is a process in which what a small nucleotide chain which is called as primer, RNA primer chain, ये क्या है, what is it? It is RNA primer is attached on the 5th end of the new DNA by the RNA primase.
so that the DNA polymerase enzyme 3 can elongate it. Now, once the RNA priming finish, now the turn of the base pairing is there. अब बेस पेयरिंग का टर्न आ गया भाई, बेस पेयरिंग करो अब. ओके, बेस पेयरिंग मतलब अब इस एंड पे यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड के चेन जोड़ते चलो और यहाँ पर भी नए न्यूक्लियोटाइड के चेन जोड़ते चलो. एंड दिस वर्क कैन बी डन बाय द DNA polymerase enzyme 3. Okay. Now, if you remember, in the first video of the replication, I said that replication is a energy requiring process. Okay, replication के लिए energy required है ना. And मैंने क्या कहा था, this energy is provided by deoxyribonucleotides itself. तो यहाँ अब ये न्यूक्लियोटाइड आए उससे पहले एक काम होना जरूरी है, and that is what? This is activation of the deoxyribonucleotides. तो देखो, जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तो साइड बाय साइड ये प्रोसेस भी चल रहा होगा. एक्टिवेशन ऑफ deoxyribonucleotides इन द साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर. अब साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा होगा? इन साइटोप्लाज्म मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, मोनोफॉस्फेट्स हैं, DAMP, DGMP, DCMP and DTMP. Okay. Adenosine monophosphate, deoxyribose adenosine monophosphate, deoxyribose guanosine monophosphate, deoxyribose cytidine monophosphate and thiamidine monophosphate. Okay, ये मोनोफॉस्फेट्स हैं. इन मोनोफॉस्फेट्स का क्या किया जाता है? फॉस्फोराइलेशन किया जाता है in presence of enzyme phosphorylase. Okay, and first of all they will be converted into diphosphates ADP, GDP, CDP and TDP, and then finally one more time phosphorylation, and because of this what happen, they converts into the triphosphates. और ये ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं. अब इनके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है. ओके, CTP, TTP इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम ये प्रोसेस हो रहा है? फॉस्फोराइलेज. व्हाट एंजाइम? फॉस्फोराइलेज. So in the presence of phosphorylase enzyme, what happens? Monophosphates are converted into the triphosphates, and in this way the energy is stored in them. तो ये energy containing molecules हो गए, ये energy containing triphosphates हो गए. अब now, okay, ये energy molecules हैं भाई. These energy containing molecules will go at the site of the replication. अब replication की वाली साइड पे गए. वापस DNA को बना देता हूँ मैं यहाँ पर. ये देखो, दिस इज द DNA 3 प्राइम 5 प्राइम एंड दिस इज द 5 प्राइम 3 प्राइम. ये यहाँ पर एक प्राइमर जुड़ा हुआ है, दिस इज द प्राइमर. ओके, दिस इज द 5th एंड, और यहाँ पर ये OH है इसके 3rd एंड पे, जहाँ पर कि नया न्यूक्लियोटाइड चेन आकर जुड़ सकता है. हेयर ऑल्सो. ओके, this is the 5th end and this is the 3rd end. Okay, 5 prime and 3 prime. Now suppose here adenine is present. यहाँ इस पेरेंटल DNA में यहाँ adenine है, तो इसके सामने यहाँ कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? A we know, A always bind with T and C always bind with G. तो इन 4 एनर्जी कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड में से कौन आया? इन 4 एनर्जी कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड में से इन फ्रंट ऑफ ए यहाँ कौन आया? यहाँ आया भाई DTTP. ये एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आया. ओके, यहाँ आके ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डीफॉस्फोराइलेशन. यहाँ ये डीफॉस्फोराइलेशन से
इनटू द डी टी एम पी में कन्वर्ट हो गया। देखो, और इससे क्या निकली, एनर्जी बॉन्ड जब टूटा इसका तो एनर्जी रिलीज हुई, और ये एनर्जी ही यहाँ पर काम आ जाएगी इस न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने के लिए। तो देखो, मैंने कहा रेप्लिकेशन के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स खुद दे रहे हैं। ये ट्राइफॉस्फेट आया यहाँ पर, कन्वर्ट्स इनटू द मोनोफॉस्फेट्स एंड देन प्रोवाइड द एनर्जी विच विल बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड और अगले न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स देमसेल्फ, खुद प्रोवाइड कर देंगे। नाउ वन मोर थिंग, जैसे एक्टिवेशन के दौरान फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने एक्टिवेशन किया था और इनको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करा, ऐसे ही यहाँ ये जब ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एंजाइम यहाँ पर जो काम करेगा, दैट एंजाइम इज व्हाट, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। और इस पायरोफॉस्फेट एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेटेज, सॉरी मैंने फॉस्फेट बोल दिया, फॉस्फेटेज, ओके, पायरोफॉस्फेटेज, एंड इन प्रेजेंस ऑफ दिस पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ट्राइफॉस्फेट्स, ओके, मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड मोनोफॉस्फेट्स विल प्रोवाइड द एनर्जी एट द टाइम ऑफ elongation of the DNA strand। हाँ, अब नया DNA स्ट्रैंड बनना शुरू हो रहा है भाई। तो नया DNA स्ट्रैंड जब बनना शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैंने कहा था ये प्राइमर है, ओके, दिस इज वेट, मैंने DNA की एंडिंग्स सेम कर दी हैं। यहाँ दिस इज 5'3 होगा, है ना, ये दिस इज 5'3, ओके। सो DNA इज 3'5 यहाँ पर और दिस इज 3'5 यहाँ, तो इसका ये 5'3 वाला DNA स्ट्रैंड है। अब देखो, DNA पॉलीमरेज एंजाइम 3 यहाँ रेप्लिकेशन कर रहा है और एक DNA पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो है यहाँ इस वाले स्ट्रैंड पे भी रेप्लिकेशन कर रहा है, ओके। यानी दो DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं। DNA पॉलीमरेज एंजाइम 3 एक मॉलिक्यूल यहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएशन कर रहा है, अब इलोंगेशन कर रहा है, और एक यहाँ कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात, जो खास बात है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम दोनों DNA टेम्पलेट्स पे काम कर रहे हैं, और अगर दोनों DNA टेम्पलेट्स पे साइड बाय साइड रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता रहे, रेप्लिकेशन के दौरान इलोंगेशन ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड होता रहे, तो ये इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा कि ये रेप्लिकेशन कंप्लीट होना मुश्किल रहेगा किसी सेल के लिए। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो दोनों स्टैंड पे अगर साइड बाय साइड ही रेप्लिकेशन साथ साथ चलता रहे, बिल्कुल साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता रहे, तो इट कैन बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ओके। इसलिए होता क्या है, ऑन अ वन टेम्पलेट DNA, तो DNA का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, नए DNA का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस होता है, ओके। एक दूसरे DNA पर जो है जो प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस तरीके से होता है, ताकि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो। अब क्वेश्चन आया, कहाँ कॉन्टिन्यूस और कहाँ कॉन्टिन्यूस और उसका डिसकंटिन्यूस, और उसका फर्क क्या पड़ेगा। द DNA स्ट्रैंड जिसपे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है ऑफ द DNA, उस पे DNA स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बन रहा है, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जा रहे हैं, तो नेचुरली इस पे DNA का रेप्लिकेशन जो है जल्दी होगा। और डिसकंटिन्यूस वाला है तो उसमें कुछ थोड़ा सा रेप्लिकेशन हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर रेप्लिकेशन हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर रेप्लिकेशन हुआ, फिर स्टॉप हो गया, तो डेफिनेटली ऐसे केस में इसमें रेप्लिकेशन थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होगा। तो वो स्ट्रैंड जिस पे DNA को डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है वो कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड
जिस पे डीएनए का सिंथेसिस कॉन्टिन्यूस हो रहा है उस पे, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस फास्ट होगा कंपैरेटिवली, वो कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। ध्यान देने वाली बात है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ क्वेश्चन कम्स, भाई लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ पर बनेगा सर? इस वाले पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा या लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, या इस वाले पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा या लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा? यहाँ कंफ्यूजन अक्सर होता है बच्चों को, इसलिए एक छोटा सा हिंट दे दूं मैं हमेशा। जहां से फॉर्क स्टार्ट हो रही है, ये फॉर्क वाला हिस्सा है, यहां से अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये रेप्लिकेशन जो चल रहा है ना, ये डिसकंटिन्यूस है। इस वाले डीएनए स्ट्रैंड पे जो रेप्लिकेशन है दैट इज द डिसकंटिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन। और ये वाला जो है यहाँ पर जो एंड से, यहाँ 3 प्राइम एंड से हो रहा है, दिस इज द कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन। तो यहाँ कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो यहाँ जो डीएनए बनेगा वो कंटिन्यूसली बनता चलेगा और इसलिए ये आगे होगा। तो दिस स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड हियर, नया जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड। और यहाँ डीएनए के स्ट्रैंड जो बन रहा है वो डिसकंटिन्यूसली बन रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा, इसलिए वो, क्योंकि बार बार रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, रुक जाएगा और फिर स्टार्ट होगा, फिर टूट रुक जाएगा, फिर स्टार्ट होगा। इसलिए यहाँ जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। दिस इज द लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड। ओके, अच्छा अब एक चीज और समझना, अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो यहाँ प्राइमिंग जो रिक्वायर्ड होगी वो सिर्फ एक बार होगी इस वाले एंड पे। यहाँ देखो ये प्राइमिंग सिर्फ एक बार रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इस पे तो कंटिन्यूसली अब एक बार स्टार्ट हो गया रेप्लिकेशन, एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया डीएनए का, तो लगातार चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड में। लेकिन इस फॉर्क से जो डीएनए स्ट्रैंड, इस फॉर्क की साइड से जो डीएनए का एक्सटेंशन स्टार्ट हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिसकंटिन्यूस है, यानी हर बार इतने से स्ट्रैंड का न्यूक्लियोट ये डीएनए का फॉर्मेशन किया, उसके बाद ये स्टॉप हो गया, तो अगली बार फिर वापस क्या चाहिएगा, यहाँ पर एक प्राइमर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो तो हर बार नया डीएनए भी बनाना पड़ रहा है उस डीएनए पॉलीमरेज 3 को, तो यहाँ फिर प्राइमर चाहिएगा, फिर यहाँ प्राइमर चाहिएगा, फिर प्राइमर चाहिएगा, एंड इन दैट वे एवरी टाइम प्राइमर विल बी रिक्वायर्ड, एंड फिर उसके ऊपर क्या होगा, डीएनए का एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ हर बार प्राइमिंग होगी, यहाँ वंस ओनली, एक बार प्राइमिंग होगी, और इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है बनता चलेगा, आगे बढ़ता चलेगा। अच्छा अब देखो एक चीज, जब ये लैगिंग स्ट्रैंड चल रहा है तो इसमें ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स ये डीएनए के जो बन रहे हैं, ये छोटे छोटे सेगमेंट जो यहाँ बाइंड हो रहे हैं, ये स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए क्या है भाई, इन स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, जिनका नाम था ओकाजाकी, और इसलिए इनको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके बारे में किसने बताया था, ओकाजाकी ने बताया था। ठीक है, और ये ओकाजाकी सेगमेंट जो ये वाला है, ये फ्रैगमेंट है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं भाई, कितने न्यूक्लियोटाइड वाली चेन है ये, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये ओकाजाकी अगर हो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रैगमेंट अगर बन रहा है, तो इसकी लेंथ होती है करीबन 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड, मतलब 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है ये चेन। बट अगर हम यहाँ पर बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो ये कंपैरेटिवली छोटा होता है। ओके, और यूकैरियोट में इसका जो लेंथ है वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है ओनली, यानी 10 गुना बड़ा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम कहें तो। इससे देखो यहाँ पर ये 100 है तो उससे 10 गुना बड़ा हो गया 1000, 200 से 10 गुना बड़ा हो गया 2000। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर क्या होता रहेगा, लगातार रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो ध्यान देना, फॉर्क वाली तरफ से जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है ना, और जिधर एंड से हो रहा है वहाँ कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो एंड से हो रहा है उस पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, और फॉर्क वाली साइड से जो हो रहा है उस पर क्या होगा, वहाँ पर उस पर लेगिंग स्ट्रैंड बनेगा हमेशा। ठीक है, ये देखो यूँ इस तरह से यहाँ पर। अब ये यहाँ भाई ये डीएनए बन गया, ये लो ये कॉन्टिन्यूस डीएनए बन गया, और यहाँ अब ये क्या है, ये स्मॉल सेगमेंट्स में बन गया, ये हर बार प्राइमर रिक्वायर्ड हुआ और ये इस तरह से यहाँ। ठीक है, तो डीएनए बन गया ये लो सब यहाँ पर। नाउ व्हाट अब क्या हुआ,
ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 ने ये प्रोसेस कर दिया. नाउ द टर्न ऑफ द पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 एंड 2. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 एंड 2 अब इसको क्या करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे और रिपेयरिंग करेंगे. देखो क्या हुआ, यहाँ ये प्राइमर है, तो इसके सामने यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड चेन है उसके साथ ये प्राइमर आरएनए प्राइमर है, ये तो ध्यान रखो, है ना, तो जोड़ ही नहीं सकता. यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर, तो ये इसके साथ थोड़ी बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड थोड़ी बनेगा इस तरह से. ठीक है, तो इनको क्या करो, इनको यहाँ से हटाओ प्राइमर्स को और इनकी जगह नॉर्मल डीएनए सीक्वेंसेस जो बनाओ. अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर इन पे नया डीएनए बना सकता है. देखो क्यों नया नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, उस पर तो बनाना है. तो क्या होगा, रिपेयरिंग के दौरान और प्रूफ रीडिंग के दौरान इन प्राइमर्स को हटाया जाएगा और इनकी जगह कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो भी यहाँ सीक्वेंस है उसकी जगह यहाँ पर जो सीक्वेंस यहाँ आनी चाहिए उनको यहाँ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा. सो दैट विल बी. एंड ये ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट्स है, ये एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये अगला ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है, अब इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को भी तो जोड़ो भाई, है ना. तो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम यहाँ कौन करेगा, अगला एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम. तो ये डीएनए लाइगेज एंजाइम इनको यहाँ पर बाइंड कर देगा और इनके बीच में जो बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा था बेस पेयर्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री, अगर यहाँ ए था और यहाँ टी था, यहाँ सी था, यहाँ जी था, है ना, ये बॉन्ड्स भी साथ के साथ जो है बनते जाएंगे. एंड दैट इज ऑल्सो डन बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम. और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा. तो ये डीएनए का ये यहाँ पर आगे की तरफ यूँ चलता रहेगा, ये यूँ चलता रहेगा. एंड फाइनली यू विल सी दैट द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड. ये 2 डीएनए स्ट्रैंड बन गए यहाँ पर ऐसे, एक पेरेंट डीएनए ये बना एंड द अनदर डीएनए इज दिस वन. अब इसमें ये 3'5 वाला ये वाला पेरेंटल डीएनए हो गया and this is the new DNA strand, and in it this is the parental DNA and this is what the new DNA strand. This is 5'3. तो इस पे देखो नया जो बना वो क्या बना, this is the 5'3 वाला बना इस पे, और यहाँ पर ये 5'3 वाला ये नया बना. This is the new one, this is the new one, and in this way semi conservation is carried out. semi conservative है देखो, ठीक है. रेप्लिकेशन. नाउ यहाँ आके हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है.